Now see example number 5. Ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. The ball falls off a table, means from that table we can say it's there fallen and reaches ground to the within 1 second, assuming that g is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. Calculate its speed. Calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. What we have to find here? Calculate its speed of that ball, and what is the height of that table. Okay. So first thing here, it's given time 1 second. Time is given 1 second, and velocity g is given there 10 meter per second square. So time taken by ball to reach ground from table or off table, you can write it's 1 second. Okay. And they are given the value of g, that is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is given there g. So what will you get? G is equal to 10 meter per second square. 10 meter per second square. Now what we have to find first? What we have to find here? Height of the ball. Height of the ball or height of the table, sorry here. Height of table. And then second, we have to find out its velocity. Correct? Velocity only. Second thing. So here we have to find just velocity. What we have to find here? Velocity. So we have to find here v is equal to question mark. Okay. So by Newton's first equation of motion. First equation of motion. What is the formula? V is equal to u plus at. V is equal to u plus at. So now here initial velocity is 0, u is equal to 0, a is given that 10 and t is 1. So v will get here 10 meter per second. What will get here? Velocity 10 meter per second. So first we got. Now we have to find displacement, that is the height. What do we have to find now? And for that we have to apply the formula Newton's second equation of motion. Now see, this is Newton's third equation of motion we have seen already in standard 9. So here that we have to apply equation of motion. So what is the formula for that? S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. So yes, we have to find initial velocity 0, time is given 1 second. Okay, then half into a is the 10 and time we got the 1 square, means the 1 second. So 0 on the 0 will get here. Okay, 2 on the 2, 2 5 the 10 and 1 square is the 1. So what will get here? 5 meter. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को जो दो फॉर्मूले यूज करने वो दोनों ही न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन थे। उसमें से जो पहला हमने यूज किया था वो फर्स्ट ही था इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी डी होगी या इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और टाइम, इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू अगर हम मिल जाती है तो चौथी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हम यहाँ भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, उन्हें भूलना नहीं है। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, दिखाई देता है 2 लाइन में आता है और ज़्यादातर वैल्यू दी नहीं, इसमें सिर्फ खाली 2 वैल्यू दी हमारे पास, फिर भी हमें ये बाकी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और अच्छी तरह से याद रखो कैसे निकालनी है। इसे बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है वो याद रहेगा और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के टेक्स्ट में दिया है 5 दिया है हमने, यहाँ पे अभी 6 वाला लेंगे। तो 6 वाला जो प्रॉब्लम है हमारे पास, that is F in your text, that is a F. The masses of the earth and moon, masses of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.8 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between the two. Means now what is here given? Masses of two objects are given there. What is given? Masses of two objects. One is the earth and second is the moon. Okay, we know the mass of earth, that is 6 into 10 raised to 24 kg, and mass of moon is there 7.4 into 10 raised to 22 kg. Then distance between them given there 3.8 into 10 raised to 5 kilometer. And we have to find their gravitational force attraction between them and use they are given one into u. G is equal to 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meters square kg raised to minus 2. G means here gravitational constant is given. Okay, there are two bodies are given, one mass of the earth and mass of the moon, means first body is the earth and second body is the moon. उन दोनों का मास दिया है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है और g की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पे अभी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या मुझे, कौन सा फॉर्मूला आ सकता है इस पे? यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो कौन सा रहेगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर और r स्क्वायर, d स्क्वायर और r स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है तो हम यहाँ पे d लेंगे, ठीक है, और बाकी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कैसे फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम बहुत इजी है, इसके जैसे प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद जो भी दिया है वो गिवन में लिखना है। याद रखो, मैंने पहले प्रॉब्लम में बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे दिया आप लोगों को मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। बहुत सारे बच्चों को ये राइटिंग करना अच्छे नहीं लगता, उनको बोरिंग लगता है, लेकिन वो लिखना पड़ता है तभी तो मार्क मिलेंगे। नहीं तो कुछ लोग लिखते हैं सिर्फ खाली या इसका मीनिंग आप लोगों को मालूम, लेकिन चेकर को भी मालूम होता है, लेकिन आपने वो लिखा नहीं होता ये भी मतलब, वो आप लोगों को लिखना पड़ता है, याद रखिए। तो लिखना है हमें मास ऑफ अर्थ। ओके, so m is equal to what we get here, 6 into 10 raised to 24 kg. Okay, now next is there given mass of moon. Mass of moon we will get here m capital S small is equal to, आप लोग देखोगे वो है 7.4 into 10 raised to 22 kg। उसके बाद दिया है हमें डिस्टेंस बिटवीन बोथ। ओके, डिस्टेंस बिटवीन बोथ मींस दिस टू, दैट इज अर्थ एंड मून। वो दिया है आप लोगों को 3.8 into 10 raised to 5 किलोमीटर, करेक्ट, 5 किलोमीटर। यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे अगले जो दिया है वो जी की वैल्यू मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग याद रखनी है 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी रेज़ टू माइनस 2। अभी हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है उन दोनों के बीच का। तो फोर्स ऑफ attraction between earth and moon and earth। so formula आप लोगों को अप्लाई करना है, F is equal to कैपिटल G m e, आप लोग ऐसे भी पहले m e लिख सकते, बाद में m लिख सकते,
अपॉन टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ये यूज करना है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, कोई भी आप पहले दे सकते हैं। तो हमारे पास मैं अगर यहाँ पे देता हूँ मास ऑफ मून लिया 7.4 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ लिया 6.6 इंटू 10⁻24 kg। और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो अभी लिखना है हमें, वो किलोमीटर में दिया है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसे किलोमीटर में लिखते हैं और मीटर पर, उससे मीटर में लिखना है या किलोमीटर, कौन बताएगा मुझे? आपके जो यूनिट है जी का आप देख सकते हैं तो मीटर ऊपर दोनों भी बराबर है, केजी करेक्ट है, लेकिन जो नीचे का यूनिट है उससे क्या करना पड़ेगा, मीटर में लिखना है किलोमीटर, आप लोग बताओ मुझे। मीटर में लिखना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो 3.8 इंटू 10⁸8, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 10⁸8 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 में कितनी जरूरत आती है 3, तो यहाँ पे 10 के ऊपर मैंने चेक किया 5 + 3 8 हो गया। समझ में आ रहा है? ओके लिखा है, तो आप लोग को ऐसे ही वो लिखना है यहाँ पे। तो अभी क्या मिलेगा यहाँ पे 3.8 इंटू 10⁸8 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या करना है यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर लिखना है। अभी आप लोग लिख सकते हैं ये 6.67 वैसे रखो, 10⁻22 है, 24 है, इनके बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसे 10⁻11 में वैसे को वैसे रखता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन मुझे लेना है 7.4 इंटू 6, आप लोगों को 6 का टेबल आता ही होगा, 6 4 24, 6 7 42 + 4 42 + 2 what will get 44.4। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना आप लोग भूलना नहीं है, वो अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन करने, और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लोग कोई चूक कर जाते हैं तो पूरा वो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि आंसर और सब मल्टीप्लिकेशन जो इन पे डिपेंड रहता है। ओके, और यहाँ पे 3.8 का स्क्वायर लेना है, क्या करना है हमें 3.8 का स्क्वायर। मैंने उस दिन भी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरे पहले, तो उस वीडियो में ट्रिक बताई थी कैसे वो करना है। इसे 38 कंसिडर करना है, हमें क्या करना है 38 का स्क्वायर कंसिडर करना है। ये हमारा रहेगा ये रहेगा बी, और ये बनेगा हमारा सी। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, पहले हमें बी स्क्वायर लेना है, यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ऐसा करना है। सो बी का जो स्क्वायर है हमारा वो पहले लेना है, ओके, क्योंकि वो यूनिट प्लेस में हम रखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना है हमारा 64, 6 ऊपर जाएगा, 64 का 6 क्या होगा ऊपर जाएगा। अभी ए बी सी मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना, 3 × 24, 24 × 2 48, 48 + 6 54, तो अभी 5 इधर जाएगा इधर ऊपर। अभी ए का स्क्वायर मतलब ये मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 5, ये मिल गया आपको। और हमारा इसका जो डेसिमल पॉइंट मिल से हमें मिलेगा 14.44। और अभी आप लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे 10⁸8 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 7th में इंडाइसिस का रूल देखा था, a⁻m ब्रैकेट m हमें मिलता था a⁻m मल्टीप्लाइड बाई n। सो यहाँ पे हमारा है जो 10⁸8 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप लोगों को मिलेगा 10⁻16। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर इसका भी स्क्वायर कर लेंगे 64 होगा, तो गलत होगा, 64 नहीं लिखना है इसका, हमें इंडाइसिस रूल अप्लाई करना है, वो बनेगा हमारा 10⁻16। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये 14.4 और जो 14.44 उनका हम क्या कर सकते, पहले डिवीजन कर सकते, बाद में हम क्या करेंगे 6.67 की तरफ देंगे। नहीं तो आप लोग ऐसा करो, सीधा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 14.4 करो, डिवाइड बाई क्या करो 14.44 करो। ठीक है, सो आप लोगों को जो उचित लगे आप लोग वो कर सकते हो।
या फिर हम लेंगे ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करना है, डिवीजन करना है। अभी हमारे पास जो 44.4 उसे डिवाइड करना है हमें 14.44 से। सो अभी क्या करेंगे, हम ये डेसिमल पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4440 और यहाँ पे आप लोग को मिलेगा 1444। तो अभी 14 का टेबल आता है, 14 3 कितना होता है आपका 42, 14 3 कितना आता है 42 एंड 44 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 4 32। यहाँ पे आप लोग मिलेगा 3 4 12 मिलेगा। यहाँ पे भी मिलेगा 3 4 12 एंड 12 प्लस 1 13 मिलेगा। क्या मिलेगा 30। ओके यहाँ पे हमारा जो मिला था 4200 इससे ऐड करो इसमें आप लोग मिलेगा ये 4332। ओके हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4332। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे मिलेगा हमें 4332। इसे सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे मिलेगा हमें 8, यहाँ पे 0 1 1 एंड 8। ओके अगर हम यहाँ पे लेंगे तो फिर से डेसिमल पॉइंट छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 के ऊपर ही रुक जाएंगे और अभी जो हमारा बाकी यहाँ पे 6.67 इंटू 3 करेंगे। 6.67 इंटू 3 करेंगे। 3 7 21, 3 6 18 प्लस 2 20, ये 2 जाएगा। फिर से यहाँ पे मिलेगा 20 आफ्टर 2 digits we have to go the decimal point is 20.01 20.01। अभी आप लोगों को मैंने ये बताया था कि हमारे ये आंसर मिल गया यहाँ पे 20.01। सो मल्टीप्लाइड बाय अभी देखो 10⁻11 रहेगा वैसे वैसा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24। यहाँ पे आप लोगों को अभी ये जो 10⁻16 था इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला है हमारा a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो हमारे +16 था, ये ऊपर आके क्या बनेगा 10⁻16। अभी आप लोगों को एक भी फॉर्मूला याद रखना है, a⁻m इंडक्स रूल है a⁻m इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या यहाँ पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा -11 प्लस 22 प्लस 24 -16। सो पहले क्या करो माइनस माइनस नंबर -16 -11 बनेगा -27। ओके बिकॉज दोनों के नंबर क्या है हमारे नेगेटिव। अभी 22 प्लस 24 वो बनेगा +46। अभी -27 करो, इसमें से क्या मिलेगा आप लोगों को 19 मिलेगा। क्या मिलेगा 19। ओके यहाँ पे 20.01 है तो हम क्या करेंगे इसका डेसिमल पॉइंट निकल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2 × 10⁻20 और यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा न्यूटन। इसके वजह से हमारा फाइनल आंसर आता है 2 × 10⁻20 न्यूटन। So now friends we'll see problem number last from this practice set or exercise, that is G. The mass of the earth is 6 × 10⁻24 kg. The distance between the earth and sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 Newton, what is the mass of the sun used? G is equal to 6.7 into 10⁻11 Newton meter square kg raised to -2. Okay friends, now here we'll see what is given here, mass of earth. Okay, so you write given thing first, that is the mass of earth. So mass of earth it is given and you should know it, that is the 6 × 10⁻24 kg. Okay, then what is given, distance between earth and sun. Distance between earth and sun, you write distance between earth and sun is given there 1.5 into 10⁻11 meter. Okay, then what is given there, value of G. This is gravitation constant 6.67 into 10⁻11 Newton meter square
kg raised to minus 2. This is the regular value. You should remember this. And sorry, here 3 point. There is distance between Earth and Sun is given, and the gravitational force is given there. Next thing, what is given? Gravitational force. What is given gravitational force? That is our value of F is equal to 3.5 into 10 raised to 22 Newton. Okay, these values are given to you, 10 raised to 22 Newton. Now we have to find mass of Sun. What we have to find here? Mass of Sun. So आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, mass of Earth means you can write m e. Mass of Sun मतलब we can write m s is equal to question mark. Okay, आप लोगों को न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. F is equal to G capital M. Here you can take mass of Earth capital M, S mass of Sun upon you will get d square यानी डिस्टेंस, d square यानी डिस्टेंस. तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया है d is equal to 1.5 into 10 to 11 meter. G's value already is given here. But here one thing you have to see friends, आप लोग को ms की वैल्यू निकालनी. कौन सी? ms की. तो ये वैल्यू हमें क्या करेगी, जब हम इसे इधर लेंगे तब ये सब चेंज हो जाए. तब ये सब क्या होगा? चेंज होगा. वो कैसे होगा देखो, पहले हम m s इधर लिखेंगे तो हमारा जो g इंटू एम है वो नीचे जाएगा और f इंटू डी स्क्वायर क्या होगा वो ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि f यहाँ पे इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. और जब एम एस है ये इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा तो 1 अपॉन एम एस हो जाएगा. वो क्या होगा? 1 अपॉन एम एस इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर इंटू एफ. ऐसा बन जाएगा. लेकिन हमें 1 अपॉन एम एस नहीं निकलना, हमें क्या निकलना है? खाली एम एस. तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और इन्वर्टेड करना पड़ेगा. तो फिर क्या होगा? एम एस इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एफ अपॉन जी एम ई. ऐसा करना है दोस्तों. फिर आप लोगों को ये ऐसे रीअरेंज होगी. ठीक है. अब यहाँ पे आप लोगों के पास इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻22. उसके बाद डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 ब्रैकेट स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें. उसके बाद जी की वैल्यू है वो आप लोगों के पास है 6.67 इंटू 10⁻11. यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आप लोगों को मालूम है वो है 6 इंटू 10⁻24 kg. अब क्या करो आप लोग, यहाँ पे 3.5 1.5 का आपको स्क्वायर निकालना है. 1.5 और 7 पॉइंट निकाल लो. आपको 15 का स्क्वायर अगर याद है तो आप सीधा लिख सकते हो, वो है 225. सो डेसिमल पॉइंट है, इसको से हमारा वो बन जाएगा 2.25. मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है हमें? 3.5 करना है. मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है यहाँ पे? 3.5. 35 का टेबल बनाना है आपको. 35 का टेबल बनाना आसान बात है. 30 का टेबल बनाओ. 3 5 15 आता है. 3 5 15, 30 5 150, 5 5 25. यहाँ पे ऐड हो गया 175 आता है. बराबर. तो ये आखिरी डिजिट इधर डालो, यहाँ पे 70 दिखेंगे. 35 टू द 70 आता है. 35 टू द 70, 70 प्लस 7 87, ऊपर गया 8. 35 टू द 70, 70 प्लस 8 78. यहाँ पे देखिए 2.25 था और 3.35 था. 3.5 था. 1 2 3 आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम 2 प्लस 1 3 1 2 3. यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7.875. क्या मिलेगा? 7.875. यहाँ पे 10⁻22 तो वैसे तो ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है फिर लास्ट एग्जांपल में बताया तो वैसे होगा. a⁻m ब्रैकेट m है, a⁻m मल्टीप्लाइड बाय n. दोस्तों सीधा 11 टू द आपको आता है तो क्या बनेगा? वो 11 टू द 22. ये भी क्या बनेगा? 11 टू द 22. यहाँ पे हो गया सॉल्व दोस्तों. अब इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आती है, अगर आप लोग देखोगे तो वो आती है हमारे पास 40.02. क्या आती है? 40.02. अगर हम इसे 40 पॉइंट पे 4 पॉइंट करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो डेसिमल पॉइंट वो उधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों के पास 10⁻⁹ इंटू 10⁻24. क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया था. क्या किया था? डेसिमल पॉइंट वो 40.02 था.
तो हमने क्या किया, 2 डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके वो प्लस हो जाएगा उधर, 10⁻⁹ बनेगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को फिर से ये फॉर्मूला याद रखना है, a⁻m इंटू a⁻m प्लस n। तो आप लोगों के पास ये मिलेगा 10⁴। ठीक है, अभी आप लोग इनकी एडिशन करोगे तो आप लोग मिलेगा ये 10⁻15। कितना मिलेगा, 10⁻15। जब ये ऊपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻15। समझ में आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 10⁻15। और 7.875 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4.002 है, लेकिन हम क्या करें अभी, आप लोग ले सकते 4.002 से देख सकते। अब ये बनेगा 1, पहले डिवीजन करो, मैं आप लोग यहाँ पे वो सेपरेटली करके दिखाता हूँ कैसे कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत सारे यूज होते हैं दोस्तों, इसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे। 7.875 डिवाइड बाय, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद में सोचेंगे हम 4002 लेंगे, 4002। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, आप लोगों को मिलेगा ये 5 3 7, यहाँ पे 8 3873। अभी छोटा नंबर हो जाएगा, हमें इसे बनाना है अभी 38,000। इसे लेंगे हम डेसिमल पॉइंट 38,730। 4,000 का टेबल आता है आप लोगों को, 4 9 आता है 36, 4 9 लेके आता है 36। तो हमारा यहाँ पे 4002 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे, सो 9 to the 18 होगा, और 9 यहाँ पे 36,018। तो 36,018 इसको सब्ट्रैक्ट करो दोस्तों, फिर ये 2 यहाँ पे मिलेगा 17866 गया 2, फिर से डेसिमल पॉइंट ये बनेगा 27,120। तो यह आएगा हमारा 4 6, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1.96। और अगर हम उससे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्या आ सकता है 2। एंड देन आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 आता है हमारे डिवीजन करने के बाद नियर अबाउट 1.96 का हम क्या कन्वर्ट करेंगे 2 करेंगे, क्या करेंगे 2। ओके, अगर आप लोगों को टेक्स्ट में वैसे आंसर दिया तो आप लोग सिर्फ क्या करो 1.96 लीजिए, इसे 2 में कन्वर्ट मत कीजिए। सो यहाँ पे फाइनली हम 1.96, यहाँ का जो मैंने बताया था 10⁻15 था, ये दोनों की क्या करो अभी एडिशन करो, आप लोगों को मिल जाएगा 10⁻39। क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10⁻39। आपका फाइनल आंसर भी ये होगा 10⁻39 kg। देखिए वो आंसर करेक्ट है 10⁻39 kg है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 10⁻44 माइनस 10⁻15, ये दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा वो 10⁻29। सो यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट को कम दिया थी, इसमें से हमें मिल रहा है 1.96 इंटू 10⁻29। ये अप्रोक्सीमेटली आप लोग को जाएगा 10⁻30 kg। कितना जाएगा 10⁻30 kg। आप लोग को ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है।